हेलो एवरीबॉडी, आप सभी का मेरे चैनल फिजिक्स की क्लास में स्वागत है। आज हम सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स एंड रोटेशनल मोशन चैप्टर से चौका नंबर 10 के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। वीडियो में सबसे पहले क्वेश्चन है, उसके बाद उनके सॉल्यूशंस। क्वेश्चन नंबर 1, ए स्फीयर ऑफ मास m एंड रेडियस r shown in the figure slips on a rough horizontal plane. At some instant it has translational velocity v0 and rotational velocity about the center v0 by 2r. Find the translational velocity after the sphere starts pure rolling. ऑप्शन है 2v0 by 3 v0, 5v0 by 9, 6v0 by 7. Question number 2. A light rod of length 1 meter is pivoted at the center and two masses of 5 kg and 2 kg are hung from the end as shown in the figure. Find the initial angular acceleration of the rod assuming that it was horizontal in the beginning. Options हैं 5.3 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर, 8.4 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर, 3.6 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर, 9.2 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर. Question number 3. A sphere starts rolling down on inclined of inclination theta. Find the speed of its center when it covers a length L. Root 2gl sin theta by 3, root 10gl sin theta by 7, root 5gl sin theta by 7, root 5gl sin theta by 3. Question number 4. A solid sphere rolling up on a rough horizontal surface with a linear velocity speed v collides elastically with a fixed smooth vertical wall. Find the speed of the sphere after it has started pure rolling in the backward direction. v 3v by 7, 3v by 5, 2v by 5. Now solution. Question number 1. A sphere of mass m and radius r is shown in the figure slips on a rough horizontal plane. At some instant it has translation velocity v0 and rotational velocity about the center v0 by 2r. Find the translation velocity after the sphere starts pure rolling. 2v0 by 3 v0, 5v0 by 9, 6v0 by 7. एक स्फीयर, दिस इज प्लेन, स्फीयर इसकी रोटेशनल ओमेगा 0 इज v0 by 2r और ट्रांसलेशनल स्पीड इज v0. इसकी रेडियस इज r. अगर यहाँ पर इसका सपोज दिस A इज कॉन्टैक्ट पॉइंट, तो इस पर जो फोर्सेस एक्ट करेंगे इसका वेट डाउनवर्ड, frictional force F backward and reaction of this, normal reaction of this platform. सभी फोर्सेस this is mg and normal force N and F. N and F तीनों फोर्सेस passes from contact point A. The torque of these forces about A is 0. Torque of mg, F and N about
A is 0 because distance is 0. Linear momentum of sphere this is r vector, this is mv0 is p vector का मैग्नीट्यूड, तो ये होगा r क्रॉस p, इसकी डायरेक्शन होगी इनवर्ड प्लस I omega 0, this will also inward, R P both are at sin 90 degree plus I omega 0, this is Li, R into mv and sin 90 is 1, I is 2 by 5 mr square and omega is given as V0 by 2r. So, this is mvr plus 2 by 5 mvr, this is 7 by 5 mvr. Now, after some time its pure rolling starts. After time t, this is contact point suppose B और इसकी लीनियर वेलोसिटी इज v, तो जब प्योर रोलिंग होगा तो ओमेगा जो रोटेशनल स्पीड हो वेलोसिटी होगी दैट विल बी v बाई r. सिमिलरली यहाँ पर भी 3 फोर्सेस एक्ट करेंगे, एन एफ एम जी एन एंड एफ. तो बी के अलोंग जो कांटेक्ट पॉइंट है इसका लीनियर मोमेंटम यानी कि एल एफ about B, that will be mvr plus 2 by 5 mr square into omega, omega is v by r. This is 1 by 5 6 mvr. This comes 7 by 5 mvr. This is also inward. इस तरह से जो कॉन्टैक्ट पॉइंट के अलोंग है कोई टॉर्क एक्ट नहीं कर रहा है, इट मीन्स एंगुलर मोमेंटम विल बी कंजर्व्ड अबाउट दिस कॉन्टैक्ट पॉइंट. इट मीन्स 7 ये एल एफ इज इक्वल टू एल आई, एल एफ इज 7 बाई 5 एम वी आर इज इक्वल टू 6 बाई 5 एम वी आर. वी 0 दिया है तो वी 0 लिख सकते हैं, दिस इज वी 0 वी 0 वी 0 एंड वी 0, वी 0 एम वी आर और V is equal to 5 by 7 mr
into 6 by 5 mv0r. This comes 6 by 7 v0. तो v की वैल्यू आ जाती है 6 by 7 v0. This D is correct option. Question number 2. A light rod of length 1 meter is pivoted at the center and two masses of 5 kg and 2 kg are hung from the ends as shown in the figure. Find the initial angular acceleration of the rod assuming that it was horizontal in the beginning. Length 5.3, 8.4, 3.6 and 9.2 radian per second square. This is 0.5 meter, 0.5 meter, A, B and C. So, I about this point C and perpendicular to the rod, तो I होगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया 5 इंटू 0.5 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 0.5 का स्क्वायर, 7 इंटू 0.5 का स्क्वायर, 7 इंटू 0.25, 1.75 kg मीटर स्क्वायर. आई की वैल्यू. अब फोर्स जो एक्ट कर रही हैं हियर इज मास ऑफ दिस वेट ऑफ 5g और इस साइड में 2g. इस यहाँ पर टॉर्क एक्ट करेगा, रिजल्टेंट टॉर्क जो 5g वेट है ये इसको रोटेट करने की कोशिश करेगा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में और 2g वेट है इसको एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में. तो नेट टॉर्क टो इज इक्वल टू 5g इंटू 0.5 माइनस 2g into 0.5. This is 2.5g minus g 1.5g. This torque will be in clockwise direction. Torque shall be equal to I alpha. Alpha is instantaneous angular acceleration. 1.5g is equal to I 1.75 alpha. So, alpha is 1.5 by 1.75 g और 1 इसका डेसिमल हटा दें, नीचे का हटाएंगे तो 100 और ऊपर का 10. 150 बाई 175 इंटू जी की वैल्यू 9.8 पर 6 इंटू 9.8 बाई 7 1.4 8.4 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर. ये जो है अल्फा की वैल्यू होगी 8.4 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर. बी इज करेक्ट ऑप्शन. क्वेश्चन नंबर 3. ए स्फीयर स्टार्ट्स रोलिंग डाउन एन incline of inclination theta. Find the speed of its center when it has covered a length L. 2gl sin theta by 3, 10gl sin theta by 7, 5gl sin theta by 7, 5gl sin theta by 3. एक स्फीयर is rolling on a inclined plane. इसका वेट
डाउनवर्ड mg, और mg का एक कंपोनेंट होगा पैरेलल टू दिस इंक्लिनेशन mg sin थीटा. इस पर फ्रिक्शनल फोर्स इज एक्टिंग F, इसकी रेडियस सपोज R. तो नेट डाउनवर्ड फोर्स mg sin थीटा माइनस F इज इक्वल टू ma, और mg sin थीटा इज इक्वल टू ma प्लस F. इक्वेशन नंबर 1. अब torque about the center O, tau will be F into R, and this will be equal to I alpha. I is for sphere 2 by 5 m R square, and for rolling alpha is A by R. F is equal to 2 by 5 mr square into A by R into R is equal to 2 by 5 ma. F की वैल्यू ये हमने इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दी. 2 sin थीटा इज इक्वल टू ma प्लस 2 by 5 ma, और 7 by 5 ma. m से m क्रॉस हो गया, एक्सेलरेशन आ जाता है 5g sin थीटा बाई 7. अब ये स्फीयर मूव कर रहा है यहाँ से, और L डिस्टेंस मूव करता है. This is L. तो एक्सेलरेशन A, इनिशियल वेलोसिटी 0 एंड फाइनल वेलोसिटी इज v. तो v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2a s. तो v स्क्वायर इज इक्वल टू u 0 प्लस 2 इंटू 5g sin theta by 7 into L. This comes tan GL sin theta by 7. So V is root tan GL sin theta by 7. Tan GL sin theta by 7, B is correct option. Question number 4. A solid sphere rolling on a rough horizontal surface with a linear speed v collides elastically with a fixed smooth vertical wall. Find the speed of sphere after it has started pure rolling in the backward direction. V 3v by 7, 3v by 5, 2v by 5. एक प्लेटफॉर्म, रफ प्लेटफॉर्म, यहाँ पे एक सॉलिड स्फीयर रोल कर रहा है. इसकी स्पीड और जब ये रोल करता हुआ यहाँ इस दीवार से टकराता है तो इसकी स्पीड होती है v स्पीड से इसे टकराएगा, और यहाँ पर जो एंगुलर वेलोसिटी होगी वो होगी v बाई आर. अगर r इसकी रेडियस है तो v बाई आर. यहाँ से टकराने के बाद दिस इज वॉल,
इसकी लीनियर स्पीड जो है ट्रांसलेशनल स्पीड वो रिवर्स हो जाती है सेम मैग्नीट्यूड की, लेकिन रोटेशनल सेम रहती हैं। ये अगर यहाँ से टकरा के जा रहा है तो इसकी इनिशियल सपोज जस्ट ये टकराया और टकराने के बाद वापस डायरेक्शन में चला गया, तो इसकी लीनियर स्पीड इज रिवर्स्ड, बट दिस इज इनिशियल एट ओमेगा and omega is v by r. After some time it rolls, start pure rolling. Suppose प्योर रोलिंग के समय इसकी लीनियर स्पीड इज v1, वेलोसिटी इज v1 एंड रोटेशनल वेलोसिटी omega 1 will be v1 by r. At this contact point, यहाँ पर जो रिएक्शन होती है वो भी यहाँ पर एक्ट करती है, एन इसका mg भी पास ऑन होता है यहीं से, और फ्रिक्शनल फोर्स जो एक्ट करेगी इस पर दैट इज आल्सो पासिस फ्रॉम दिस कॉन्टैक्ट पॉइंट. सिमिलरली यहाँ पर भी इसका F रिएक्शन और mg पास ऑन होते हैं दिस कॉन्टैक्ट पॉइंट. तो टॉर्क अबाउट कॉन्टैक्ट पॉइंट इज 0. हैंस जो एंगुलर मोमेंटम अबाउट दिस कॉन्टैक्ट पॉइंट विल बी कंजर्व्ड. यहाँ पर अगर एंगुलर मोमेंट Li है एंड दिस इज Lf, तो Li होगा m वी आर माइनस जो एम वी आर की डायरेक्शन होगी वो अपवर्ड होगी, लेकिन आई ओमेगा डाउनवर्ड होगा. तो ये एम वी आर माइनस आई ओमेगा, और एम वी आर माइनस आई है 2/5 एम आर स्क्वायर एंड ओमेगा इज वी बाई आर. तो एम वी आर minus 2/5 MVR, this is 3/5 MVR. तो Li की वैल्यू आ जाती है 3/5 MVR. अब LF, LF का जो ड्यू टू ट्रांसलेशन मोशन जो एंगुलर मोमेंटम होगा उसकी डायरेक्शन और ड्यू टू रोटेशनल मोशन के कारण जो होगा एंगुलर मोमेंटम वो सेम डायरेक्शन में होगा, अपवर्ड डायरेक्शन में. तो ये होगा mv1 r प्लस i ओमेगा 1 mv1 r प्लस 2/5 mr स्क्वायर इंटू v1 बाई r. mv1 r plus 2/5 mv1 r, this is 7/5 mv1 r. LF is equal to Li, so 7/5 mv1 r is equal to 3/5 mvr. यहाँ पर m से m क्रॉस हो गया, r से r क्रॉस हो गया, phi से phi क्रॉस हो गया. तो 7v1 इज इक्वल टू 3v और v1 इज इक्वल टू 3/7v. तो जो v1 होगा दैट इज 3/7v. दिस B इज करेक्ट ऑप्शन.